ہیں کیا کرتے ہیں یہ تعارف بھی ان سے لینا ہے اور آپ سے بھی تو سوال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ روزانہ ذہنی آزمائش کی جو اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے نام سے، اور روزانہ ہی آن لائن اس پہ سوال ہوتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی جواب دے کر اس میں اپنا جواب دے سکتے ہیں، اور اپنے سلسلے میں بھی ہم اپلیکیشن سے بھی صحیح جواب جو ہوتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے ناظرین پروگرام کے آخر میں، کل بھی ہم نے کیا تھا، تو پہلے تو اس سوال کا جواب اور چند نام اور اس میں قرآن اندازی کر لیتے ہیں، پھر ایک اور سوال کرتے ہیں جس کا آپ نے سلسلے کے اختتام تک جواب دینا ہے۔ سوال یہ تھا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کے کس پارے میں؟ آسان سوال تھا، تیسرا پارہ۔ نام تو بہت سارے آئے، چند سلیکٹڈ نام ہم تک پہنچے۔ عثمان اتاری گوجرا، بنت شفقت اتاریہ فیصل آباد، بنت غلام حسین اتاریہ اکرو شریف، محمد رضا خیبر پختونخوا، رحیم بخش اتاری ساکرو ٹھٹھا، اور محمد الیاس کراچی۔ اسی طرح آن لائن اپلیکیشن ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس اپلیکیشن کے بارے میں ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل پر فری ہے، اور اس میں جو چند نام ہم تک پہنچے تھے، رانا ندیم، عبد الرحمان، شاہد رضا اشرفی، ذکر الحق، شیخ زہیر اتاری اور محمد لطیف۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج انعام کن کو جاتا ہے، اور جناب یہ ہے عثمان اتاری ہیں گوجرا سے۔ آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کیا تھا تو اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ آپ تک آپ کا تحفہ جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب باری ہے ناظرین آپ سے آج کا سوال کرنے کی، جلدی سے آپ نے اس کا جواب سلسلہ اختتام سے پہلے ہی دے دینا ہے۔ اور سوال کیا ہے کہ جنت المعالی قبرستان کس شہر میں ہے؟ جنت المعالی جو ہے وہ کس شہر میں ہے؟ یہ بھی آسان سوال ہے، حرمین طیبین جانے والوں سے پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ جلدی جواب مل جائے گا، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ آئیے چار اسلامی بھائی ہمارے درمیان کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ میری دائیں طرف سے انشاءاللہ اسلامی بھائی اپنا نام بھی بتائیں گے اور کرتے کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل اتاری، میرا تعلق کراچی میڈیسن مارکیٹ وہاں کا میں عہدیدار ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ محمد فیصل بھائی میڈیسن مارکیٹ سے آئے ہیں، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی دوسرے بھائی اپنا نام بتائیں گے۔ میں محمد طلال اشرفی ہوں، کراچی سے میرا تعلق ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری مینوفیکچر ایکسپورٹ آف اچھا ماشاءاللہ، جناب ٹیکسٹائل سے تعلق ہے۔ فرحان بھائی آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ تیسرے بھائی محمد فہیم، جی میں ٹیکسٹائل کے وجہ سے ہوں۔ ماشاءاللہ، فہیم موسیٰ بھائی آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ چوتھے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الصمد اتاری ہے اور میرا تعلق موبائل فون کے شعبے سے۔ چلیں جناب، موبائل انڈسٹری سے بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بھی ہیں، میڈیسن مارکیٹ سے بھی ہیں، مختلف شعبوں میں اپنا کام کرتے ہیں، مگر آج سب کو ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذہنی آزمائش میں سوالات کا جواب دینا ہے۔ دیکھنا ہے تیاری کیسی کر کے آئے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول، قرآنی معلومات، مدنی گلدستہ، زیارات مقامات مقدسہ، اور آخری سیگمنٹ ہے درست کیجئے۔ ان 6 سیگمنٹس پر مشتمل ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ چاروں اسلامی بھائیوں سے 3 سوال ہوں گے، ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے، غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ان سوالات اور جوابات کا مقصد کیا ہے، یہ مقابلہ کیوں کروایا جا رہا ہے، یہ کسی کو جتوانے کسی کو ہروانے نہیں، آپ تک علم دین پہنچانے۔ اور مجھے لگتا ہے ان چاروں نے بھی جب تیاری کی ہوگی تو انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، گھر میں بھی ایک ماحول بنا ہوگا، کچھ پوچھیں گے بھی ان سے ہم، لیکن پہلے تھوڑا آگے چلتے ہیں اور سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے فیصل بھائی سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی کیا برکت ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے تین چیزوں سے دنیا میں عزت ملتی ہے۔ اچھا، وہ 3 چیزیں؟ 3 چیزوں سے دنیا میں عزت ملتی ہے۔ اس میں توبہ میں جلدی، ٹھیک ہے، توبہ میں جلدی، عبادت میں چستی، اور دل کی قناعت۔ دل کی قناعت۔ لوگ کہتے ہیں آپ موت کی بات نہ کیا کریں، موت کا ذکر نہ کیا کریں، حالانکہ موت کا ذکر کرنا یہ کس طرح برکت لاتا ہے، شرح الصدور میں ہے کہ بعض بزرگوں نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے۔ نمبر 1 توبہ کی جلد توفیق مل جاتی ہے، نمبر 2 دل کی قناعت، اور نمبر 3 عبادت میں چستی آ جاتی ہے۔ تو موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے، فیصل بھائی نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب ہم چلیں گے ہمارے اشرفی بھائی کی طرف،
اور अशरफी तलहा अशरफी, दुश्मन से निजात मिलने और रिस्क में इजाफे का क्या नुस्खा है? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो दुश्मनों से निजात और रिस्क में इजाफा फरमा दे? अपने दिन और रातों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ मांगा करो, क्योंकि दुआ मोमिनों का हथियार है। क्या बात है, दुआ मांगा करो, दुआ मोमिन का हथियार है, दुश्मन से भी निजात देती है, रिस्क में भी इजाफा हो जाता है। आजकल यही तो प्रॉब्लम है, लोग सबके पास जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते, दुआएं कम करते हैं। दुआ दिलो जान से करते रहना चाहिए, इसमें सुस्ती नहीं करना चाहिए। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। चले जनाब, अब हम चलेंगे हमारे तीसरे भाई की तरफ। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मोमिन की रूह कब्ज करते हुए क्या कहते हैं? मलक मौत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है। तुम्हारा रब अज़्ज़ वजल तुम्हें सलाम फरमाता है। जब मोमिन की रूह कब्ज करने मलकुल मौत आते हैं तो सुभान अल्लाह, ईमान वालों की मौत जो है वो गोया अल्लाह की रहमत से एक करम ही का सबब हुआ करती है। अल्लाह का गोया सलाम उन्हें मिलता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको भी ईमान वाली, आफियत वाली, कलमे वाली और काश मदीने वाली मौत अता फरमाए। हमारे फ़हीम भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलेंगे हम हमारे आखिरी इस्लामी भाई की तरफ, अब्दुस समद भाई जी। जो मौत को भुला देता है वो किस मुसीबत में गिरफ्तार होता है? जो मौत को भुला देता है वो 3 बातों के ज़रिए गिरफ्तार किया जाएगा। तौबा में ताख़ीर, बाक़दर ज़रूरत रिस्क पे राज़ी ना होना और इबादत में सुस्ती। जरा गौर कीजिए, तो मौत को याद करने वाले को तौबा में जल्दी तौबा मिल जाती है, तौबा की तौफीक मिल जाती है। जो मौत भुला देता है वो तौबा में ताख़ीर करता है। जो मौत याद रखता है उसको दिल में कनात मिल जाती है। जो याद नहीं करता उसको जितना दे दें, जितना मिल जाए उसे दिल ही खुश नहीं होता, और चाहिए, हमेशा टेंशन में रहता है। और तीसरी बात थी कि इबादत में वहाँ बंदा जो मौत को याद करने वाला है वो चुस्त हो जाता है, इबादत का शौक़ बढ़ जाता है। और यहाँ बताया कि जो मौत भुला देता है वो इबादत में भी सुस्त हो जाता है, उसको लगता है मुझे मरना ही नहीं है, उसको मौत याद ही नहीं आती है। तो नाजरीन, अगर वाकई नेक इंसान बनना है तो मौत को याद रखना है। लज्जतों को भुलाने वाली मौत को याद करो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपनी आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, चारों के नंबर बराबर हैं। दोबारा चलेंगे फैसल भाई की तरफ। कुव्वत हाफजा के लिए मुफीद तरीन चीज क्या है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुफीद कुव्वत हाफजा के लिए मुफीद तरीन चीज़ तर्क गुनाह है। जनाब, ये लोग कहते हैं ज़रा वजीफ़ा बताएं, कोई माजून बताएं, कोई क्या खाएं बताएं। गुनाह छोड़ दें जनाब, क्योंकि गुनाह जो है ना, इस्यान, ये निस्यान का सबब बनता है। गुनाह जो है ये भूलने की बीमारी का सबब बनते हैं। अल्लाह मुझे और आपको गुनाहों से बचाए। जिसके गुनाह कम होते हैं ना उसका हाफजा भी मजबूत हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। अब चलेंगे हम तलहा अशरफी की तरफ। इल्म की क्या ज़कात है? हर चीज की ज़कात होती है, इल्म की क्या ज़कात है? इल्म की ज़कात इस पर अमल करना है। जो शख्स इनकी ज़कात अदा करता है अल्लाह अज़्ज़ वजल इस पर लाजवाल बरकत अता फरमाता है। क्या बात है, इल्म की ज़कात यह है कि बंदा इल्म पर अमल करे। इल्म तो पढ़ लिया, अमल नहीं है, तो फिर उस इल्म का क्या फ़ायदा? क्या खूबसूरत बात लिखते हैं ना, इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया की लेना, इल्म नू पढ़ के हो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना। तस्बीह पढ़ के हो, यानी इल्म भी पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है, बा अदब भी बनना है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलते हैं फ़हीम भाई की तरफ। फ़हीम भाई, आपसे सवाल है कि हर खता यानी गुनाह की जड़ क्या है? रूट कॉज क्या है? गुनाह की जड़ किसे कहा गया? हदीस पाक सुनानी आप। किसकी मोहब्बत गुनाह की जड़ है? दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हर गुनाह की जड़। दुनिया की मोहब्बत जो है ना नाजरीन, ये हर गुनाह की जड़ है, रूट कॉज है गुनाहों का। अगर बंदा दुनिया से मोहब्बत कम कर देना, दुनिया से अपने आप को बचा ले, तो फिर इंशाल्लाह गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। जिसको दुनिया से मोहब्बत हो जाती है वो गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। सब नबी पाक का ये फरमान है कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलेंगे जनाब हम अब्दुस समद भाई की तरफ।
प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक कौन सी चीज अल्लाह अज़्ज़ा वजल के गजब को ठंडा करती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पोशीदा तौर पर दिया हुआ सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। हाय हाय हाय, पोशीदा तौर पर दिया हुआ सदका, मैं जानूं मेरा रब जाने। यहाँ प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि जनाब हमने जो काम करना है वो लोगों को दिखाना है। पहले तो कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल, अब सब बताना है लोगों को। तो बेशक नीयत अच्छी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन पोशीदा सदका कितना पसंदीदा है कि ये अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और शायद बहुत सारे नाजरीन को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कह सकते हैं या नहीं? फैसल भाई आपसे सवाल है। अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ नहीं कह सकते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अज़्ज़वजल और अल्लाह पाक कह सकते। जी, अल्लाह ताला कहें, अल्लाह पाक कहें, अल्लाह अज़्ज़ वजल कहें, अल्लाह मियाँ नहीं कह सकते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब मस्जिद में सबसे पहले चिराग जलाने वाले सहाबी का नाम बताएंगे? तलहा अशरफी साहब। सैयदना तमीम दारी रजी ताला अन्हु। जी, सैयदुना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने मस्जिद में सबसे पहले चिराग जलाए, चिरागा किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब चलेंगे फहीम भाई की तरफ। जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? अरबी। सुभान अल्लाह, जन्नत में अरबी जबान बोली जाएगी। मेरे आका की जबान है, जन्नत की जबान है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का हमारे अब्दुल समद भाई से। हदीस पाक के मुताबिक सबसे बड़ा आलिम बनने का क्या तरीका है? रसूल बेमिसाल बीमी आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। क्या बात है। खौफे खुदा, अल्लाह का खौफ बंदे को कहाँ पहुँचा देता है। अल्लाह मुझे और आपको अपना खौफ नसीब फरमाए। दुनिया वालों का खौफ है लोगों को, अब्बू ना देख लें, दोस्त ना देख लें, घर वाले ना देख लें। लोग इलाका चेंज करके, गैदरिंग चेंज करके गलत काम करते हैं। बाज़ औक़ात दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि किसी की नज़र ना पड़ जाए, लाइट ऑफ कर दो, अच्छा हैंड्स फ्री लगा लेते हैं। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, हम जो कुछ कर रहे हैं वो रब देख रहा है। काश अकेले में भी मुझे ये ख्याल मिल जाए कि मेरा रब कहीं नाराज ना हो जाए। हमें ये तो टेंशन है कि वालिद साहब नाराज ना हो जाएं, खानदान वाले नाराज ना हो जाए, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अल्लाह नाराज ना हो इसका ख्याल होना चाहिए। और क्या कमाल की बात आका ने फरमाई कि अल्लाह से डरो, सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। तो ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें इस सेगमेंट के बाद क्या बता रहा है। जनाब चारों इस्लामी भाइयों ने सारे सही जवाब दिए हैं, 6-6 नंबर पर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। इस सेगमेंट में बड़े प्यारे अशार सुनने को मिलते हैं। नात ख्वाह इस्लामी भाई भी साथ हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है मैं तर्ज में भी कुछ अशार सुनाएंगे। सवाल करेंगे फैसल भाई से, मुजरिम हूँ अपने आफव का सामा करूँ शहा। यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ मैं, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजरिम हूँ अपने अफ़व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। इंशाल्लाह अब सवाल करेंगे तलहा भाई से, और इसी कलाम का पहला शेर आपने सुनाना है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। जनाब फहीम भाई से शेर सुनेंगे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें। जाने जहां में जहां
तुम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे अब्दुल समद भाई की तरफ। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन वाह वाह वाह। इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फैसल भाई से सवाल है खाक से तामीर मज़ारे शह कौन है? मज़ारे शह कौन है? क्या खूबसूरत कलाम है सैयदी आला हज़रत का। खाक से क्या क्या गोया निस्बतें हासिल हैं और क्या प्यारी बात की है शेर में। खाक से तामीर शह मज़ारे कौनैन, किबले का जिक्र है। मामूर है वो जिस पे किबला है हमारा। मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। चले जनाब जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, मगर कमाल के शेर है कि जी खाक के ऊपर बात की आला हज़रत ने कि खाक की क्या अहमियत है। प्यारे आका का मज़ार भी खाक से ही बना है, यानी मिट्टी से तो बना है ना, काबा भी तो मिट्टी से बना है। बहुत खूबसूरत कलाम है, आप सुनेंगे इसके अशार। तला भाई से सवाल करते हैं, जिस खाक पे रखते थे कदम सैयदे आलम। इस खाक पर कुर्बान दिले शैदा है हमारा। उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आप चलेंगे हम फहीम भाई की तरफ। उसने लकबे खाक शहनशाह से पाया। हैदर करार का है मौला हमारा। जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौला अली का लकब अबू तुराब था, और क्या प्यारी बात कही आला हजरत ने कि नबी पाक से लकब खाक जो है, तुराब कहते हैं मट्टी को, अबू तुराब मट्टी वाला। तो हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का गोया ये लकब था। और अब चलते हैं आखिरी शेर की तरफ। ए मुद्दईयों खाक को तुम खाक न समझे। इस खाक पे मदफून शह बतहा है हमारा। इस खाक में मदफून शह बतहा है हमारा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुद्दईयों खाक को तुम खाक न समझो। समझे। मुद्दईयों खाक को तुम खाक न समझो। इस खाक में मदफून शह बतहा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन आपको बताते हैं अब तक मुकाबला कहां तक पहुंचा है, क्या स्कोर बोर्ड बता रहा है जी। सबके 10 नंबर हैं, अब तक के सारे जवाब दुरुस्त दिए हैं। अगला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत दिलचस्प भी है कि उसमें कुरान की बात होनी है। सेगमेंट का नाम है कुरानी मालूमात। जनाब कुरानी मालूमात सेगमेंट में कुरान के हवाले से कुरान के वाक़यात, कुरान के वज़ाइफ और बहुत कुछ कुरान के बारे में सीखने को मिलता है। बात करेंगे फैसल भाई से। सवाल है, कुरान की तमाम आयतों की सरदार कौन सी आयत है? कुरान की तमाम आयतों की सरदार आयतुल कुर्सी है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, तिरमिज़ी की हदीस है, हर चीज़ की एक बुलंदी है, और कुरान की बुलंदी सूरह बकरा है, और इसमें एक आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है, वो आयतुल कुर्सी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। वो कौन से दो नूर हैं तलहा भाई बताएं, जिनकी बिशारत एक फरिश्ते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश की? सूरह फातिहा, सूरह बकरा। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उन दो नूरों की बिशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए। और वो दो नूर ये हैं, सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें।
नाजरीन, हमें कुरान पाक को गौर से पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो दिल भी नूरानी हो जाएगा। जवाब इनका हम दुरुस्त मान लेते हैं। चले जनाब, अब चलते हैं हम फ़हीम भाई की तरफ। कुरान करीम के मशहूर नाम, मशहूर अस्मा कौन से हैं? कुरान, फुरकान, बुरहान, मुसहफ, नूर, किताब। कुरान, बुरहान, फुरकान, किताब, मसहफ, नूर। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में 6 मशहूर अस्मा इसमें लिखे गए हैं। कुरान को और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चलते हैं अब्दुल समद भाई की तरफ। मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल की गई? मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सूरह बकरा नाजिल हुई। सबसे पहले, सूरह माशाअल्लाह। बकरा, इस आयत से, इससे मुराद सूरह बकरा की पहली आयत है। जी जनाब, सूरह बकरा नाजिल हुई। इससे मुराद ये है कि इससे जिस सूरत की आयत सबसे पहले नाजिल हुई मदीना मुनव्वरा में, वो सूरह बकरा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। अब फैसल भाई से पूछते हैं, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी सूरतें सीखने का हुक्म इरशाद फरमाया और उसकी क्या वजह है? सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह माइदा, सूरह बकरा, सूरह हज, सूरह नूर और सूरह निसा सीखने का फरमाया कि ये सीखने से इसके अंदर फ़र्ज़ उलूम है, इसको ज़रूर सीखें। फ़र्ज़ उलूम बयान किए गए नाज़रीन इन सूरतों में। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर सीखो। अब बताइए कितने नाजरीन हैं जिन्होंने इन सूरतों की तिलावत की है और इनका तर्जुमा और तफसीर पढ़ा है? प्लीज़ तफसीर कुरान सिरातुल जिनान पढ़ें। और अब तो ऑडियो में भी आपको बहुत सारी आयतें और तफसीर सिरातुल जिनान मिल गई है, तो सुनना शुरू कर दें ताकि इन सूरतों के बारे में हम जानें। सवाल करेंगे हम तलहा भाई से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह निसा पढ़ने का क्या फ़ायदा इरशाद फरमाया? जिसने सूरह निसा पढ़ी वो जान लेगा कि जिसने सूरह निसा पढ़ी वो जान लेगा कि इसमें बात विरासत की हो रही है। वो जान लेगा कि विरासत को किस तरह से कौन किस तरह से महरूम रहता है और कौन किस तरह महरूम नहीं रहता। जी, विरासत का इल्म उसे मिल जाएगा कि विरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता। बड़ी डिटेल में विरासत के बारे में बयान हुआ सूरह निसा में। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फ़हीम भाई की तरफ चलते हैं। कुरान पाक की किस सूरत की आखिरी आयत में 2 अंबिया किराम के नाम आते हैं? सूरह आला। सूरह आला, जिसमें आखिरी आयत में 2 नबियों के नाम हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की किस सूरत की इब्तिदा 2 पहलों के नाम से होती है? सूरह 3। सूरह 3। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बेसिकली ये 2 फलों होगा मेरा ख्याल है, स्पेलिंग मिस्टेक है, पर 3 व ज़ैतून। कुरान पाक की किस सूरत की इब्तिदा 2 फलों के नाम से होती है? दोबारा जवाब दे दें। सूरह 3। जी जनाब, सूरह 3। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। कुरानी मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और गालिबन अभी तक किसी ने कोई गलती नहीं की है। कमाल का मुकाबला जारी है नाज़रीन, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। आइए एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर चलेंगे 4th सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। जनाब 14 नंबर सबके हैं, अब तक किसी ने कोई गलती नहीं की है। अगला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए भी और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के लिए भी। नाम है उसका मदनी गुलदस्ता। चारों इस्लामी भाइयों ने बड़े गौर से देखना है मदनी गुलदस्ता और इसी में से आपसे सवाल किए जाएंगे। नाज़रीन आप भी गौर से देखें, देखते हैं आप कितना गौर से देखते हैं। दिखाइए जनाब। रोजे से मुतालिक एक गलतफहमी ये पाई जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात में गुस्ल की आदत पेश आती है। अब आँख खुली, वक्त कम है, जल्दी से सहरी की और वक्त पूरा हो गया। अब नहा तो लिया, पानी तो बहा लिया, लेकिन बाज़ लोग कुल्ली करना छोड़ देते हैं, नाक में पानी डालना छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि अगर कुल्ली की नाक में पानी चढ़ाया तो रोज़ा टूट जाएगा। याद रखिए, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं: नाक पर पानी डालना, कुल्ली करना, पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अगर ये काम नहीं किए तो गुस्ल नहीं उतरेगा, नमाजें अदा नहीं होंगी। लिहाजा दुरुस्त मसला ये है कि रोज़े की हालत में अगर गुस्ल किया जाता है, पूरे जिस्म पर पानी भी बहाना है, कुल्ली भी करनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी गरगरा करना पड़ेगा। जनाब,
गुस्ल में गरगरा करना फ़र्ज नहीं है, कुल्ली करना फ़र्ज है। और गरगरा करना उस वक्त सुन्नत है जब रोज़ा ना हो, रोज़ा हो तो वो भी नहीं करेंगे। नमाज के लिए वज़ू करते हुए नाक में जिस अंदाज पर पानी डालते हैं उसी अंदाज पर पानी यहाँ डालना है कि चुल्लू लेना है। और नाक के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सख्त हड्डी और एक हिस्सा नरम हड्डी। नरम हड्डी पर पानी पहुंच जाए ये फ़र्ज है। मेल वगैरह तो छुड़ा लें, चुल्लू में पानी लें, नाक जो है उसके ऊपर रखी तो एक कभी इम्कान है कि पानी पहुंच जाता है। और ये जो है कि ऊपर जरा सांस ले, रोज़े में ऐसा नहीं करना। लेकिन नाक में पानी चढ़ाना है जिस तरह वज़ू में होता है, कुल्ली करनी है, वरना गुस्ल नहीं उतरेगा, जुम्बी रहेंगे और नमाजें भी पूरे दिन जो पढ़ी वो अदा ही नहीं होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े प्यारे मसाइल भी सीखने को मिले मुफ्ती साहब के ज़रिए। और अब देखना यह है कि कितना गौर से इन इस्लामी भाइयों ने ये मदनी गुलदस्ता देखा है। सवाल करेंगे फैसल भाई से, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पे पानी बहाना। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर, पूरे बदन पर पानी बहाना। नाज़रीन, ये पता होना चाहिए जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, अगर इन फ़राइज़ पर अमल नहीं करेगा तो गुस्ल ही नहीं होगा। गुस्ल नहीं होगा तो बंदा पाक नहीं होगा और बहुत सारी इबादतें वो नहीं कर पाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। सवाल है तलहा भाई से, क्या कुल्ली के बगैर गुस्ल हो जाता है? कुल्ली के बगैर गुस्ल नहीं होता जी, इसलिए नहीं होता कि वो फ़र्ज़ है। अभी जैसे 3 फ़र्ज़ हमने सुने तो कुल्ली नहीं की, चाहे पूरा टैंकी अपने ऊपर बहा दी तो गुस्ल तो अदा नहीं हुआ, क्योंकि कुल्ली करना फ़र्ज़ है। रोज़ा ना हो तो गरगरा भी करना है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। अच्छा, इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था, हमारे फ़हीम भाई बताएंगे। रोज़े की हालत में गुस्ल किस तरह किया जाए? रोजे की हालत में फर्ज गुस्ल किस तरह किया जाए? जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। अच्छा, कुल्ली के साथ एक और काम भी करना होता है गुस्ल के अंदर, वो क्या है? नाक में पानी चढ़ाना। चलिए, ये तो अलग फर्ज हो गया ना। कुल्ली कर रहे हैं और दौरान कुल्ली क्या करना जरूरी है? दौरान कुल्ली गरारा। जी, वो कब करेंगे? गरारा फर्ज गुस्ल की हालत। लेकिन रोजा होगा तो? रोज़ा होगा तो गरारा। अच्छा, ये गरगरा है। वैसे गरगरा जो है वो रोज़ा होगा तो नहीं करेंगे, और रोज़ा नहीं होगा तो लाजमी है करें, ताकि पूरे मुंह में भी पानी पहुंच जाए और हलक तक भी पहुंच जाए। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं। इनसे पूछेंगे इतनी तैयारी कर कैसे ली इन्होंने, ज़ाहिर कारोबारी लोग हैं। बहरहाल चारों इस्लामी भाइयों के नंबर बराबर हैं। अगले सेगमेंट भी करने हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक नात शरीफ सुनेंगे। और आज माशाल्लाह अदनान भाई आए हुए हैं। अदनान भाई, पिछले दिनों आपने एक बड़ी प्यारी हमें नात सुनाई थी। मैं चाहता हूँ कि या तो वो नात सुना दें, उसके अशार, या एक और भी मुझे फरमाइश आई थी हमारे दोस्त की तरफ से। भाई हैं हमारे, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। लोग बहुत तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। कई लोग वो हैं जिन्होंने सालों गुजर गए कि मदीने शरीफ के बगैर रमज़ान नहीं किया, मक्के शरीफ के बगैर नहीं किया। बल्कि आज एक साहब से बात हुई, वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ईद पाकिस्तान में की हो, ना ईद उल फितर की, ना ईद उल अज़हा की। ईद उल फितर मदीने में करते रहे हर साल, और ईद उल अज़हा में माशाल्लाह वो हज पे होते थे। मगर वाकई लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी कलाम, पहला वो जो कलाम में कह रहा था, निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, जो आपने पिछले दिनों सुनाया था, दोनों में से जो कलाम आप इंशाल्लाह पढ़ना चाहें। जी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो आपने दूसरा कलाम इरशाद फरमाया है जी, उसी कलाम को भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। और इसी से रिलेटिव एक कलाम है मदीने शरीफ की हाज़िरी के ताल्लुक से, पंजाबी ज़बान का एक कलाम है, उसके चंद शेरों पर इंशाअल्लाह उस कलाम की तरफ बढ़ जाएंगे। शायर कहते हैं कि जिंदगी दा मज़ा वे सरकार दे सरकार दे बूहे ते, जिंदगी दा मज़ा वे सरकार दे बूहे ते, मौत आवे सर होवे सरकार दे बूहे ते, कर ले
اپنیاں جانتے رب آنکھیں میں بخشاں گا، رب آنکھیں میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوئے تھے رب آنکھیں میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوئے تھے۔ قرآن چ آیا سائے عمل جاسن، قرآن چ آیا سائے عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے، کوئی اچا نہ دم مارے، سرکار دے بوئے تھے، ہو کرم سرکار اب تو ہائے ہائے گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانا بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے والہانا بار بار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور
कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं। जी नशूरा हाजी अब्दुल हबीब अंकल, मैं मारिया अत्तारिया मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 10 साल है। मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है और आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपके सिलसिले देखकर सवालात लिखकर अपने घर में बच्चों का सिलसिला ज़हनी आजमाइश करती हूँ, जिसमें मैं आपकी पूरी नकल उतार कर होस्ट बनती हूँ और अपनी बहनों की टीमें बनाकर उनका मुकाबला कराती हूँ। अल्लाह पाक आपको आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मेरे घर वालों के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी, आपके घर वालों की, हम सब की मगफिरत फरमाए। चलें जनाब, हमारी नकल कैसी उतारती हैं ये तो अब देखना पड़ेगा। अगली एक और कॉल दीजिएगा। जी माशाअल्लाह सोजल मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल माशाअल्लाह सोजल अपनी बरकतें और बहर लुटा रहा है। अल्लाह सोजल अब्दुल हबीब भाई को शाद आबाद रखे। अब्दुल हबीब भाई से सवाल है कि क्या ईद पर भी ज़हनी आजमाइश होगा? इस हवाले से इरशाद फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। 30 दिन, और अल्लाह करे पूरे 30 दिन ही मिले रमज़ान के, फिर तो पेट भर जाना चाहिए लेकिन हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें अभी तक तो प्लानिंग में नहीं है। एक मशवरा आया था कि ईद में भी ईद स्पेशल करना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा इरादा यह है कि कुछ और नया करें। ज़हनी आजमाइश ज़ाहिर पूरा माह करेंगे इंशाल्लाह, तो ईद ट्रांसमिशन में गालिबन नहीं होगा। जी अगली कॉल दीजिएगा। Abdul Habib uncle, me and family liked your show and my favorite segment is Juice Teacher. I respect your, please invite your Ashfaq uncle. जज़ाकल्लाह फॉर योर अप्रिसिएशन। इंशाल्लाह विल ट्राई टू इनवाइट अशफाक भाई। उम्मीद है कि मजलिस ने भी मैसेज सुन लिया होगा, अशफाक भाई तक पैगाम पहुँचाएँ भाई, वो भी आए हमारे सिलसिले में। एक और कॉल ले लेते हैं। अब्दुल हबीब साहब, आज तो आप एकदम दूल्हा लग रहे हैं। अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए, आमीन। मैंने तो, चले जनाब, वो कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हो ना उसके पसीने से भी खुशबू आती है। असल में ये हुस्न आपकी आंखों में है, तो मैं तो आज बड़ा नॉर्मल सा। चले ठीक है, एक कॉल ले लेते हैं। अब्दुल हबीब साहब, अब तक ज़हनी आजमाइश में 27 रुकने शुरा में से सिर्फ 4 ही आए हैं, बाकी कब आएंगे? बाकी कब आएंगे, हाँ ये सवाल भी है। कुछ अरकान शुरा तो कराची से बाहर हैं, ट्रेनें बंद हैं, जहाज़ बंद हैं, तो उनको तो हम तकलीफ़ नहीं देंगे। अलबत्ता हमने ये सोचा कि रुकने शुरा एज अ मेहमान आ जाए, ठीक है, कॉन्टेस्टेंट के तौर पर बुलाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगा हमें, तो फिर हमने इसलिए सिलसिले को रोक दिया। अलबत्ता इंशाल्लाह उनकी ज़ियारत आपको कराएंगे। एक और कॉल ले लेते हैं। जी चलें, तो अब चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, और 2 सेगमेंट्स हैं जो फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन से स्लैम पे आगे जाएंगे। सारे स्लैम पे बराबर जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है जिसमें इनको ज़ियारतें दिखाई जाएंगी, हम सबको दिखाई जाएंगी, देखने का मौका भी मिलेगा। नाम है उसका ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। में नाजरीन आपको और हमें कुछ ज़ियारतें दिखाई जाएंगी। इन चारों ने बड़े गौर से देखनी है, फिर इनसे पूछा जाएगा बताइए ज़ियारत कौन सी है। आइए गौर से देखते हैं। जबल सौर है मक्का मुकर्रमा में। ये हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर के करीब एक मस्जिद है, छोटी सी जगह है ज़ाहिर है, लेकिन अच्छा ये जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा है। हबीब अजमी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की चिल्ला गाह है। ये मुक़द्दस मुसल्ला, सुभान अल्लाह, बड़ी मुबारक जगह है ये। अच्छा ये हज़रत ख्वाजा मखदूम नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी, अच्छा हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है। सुभान अल्लाह, ये हज़रत उम्मे मैमूना रदी अल्लाह तआला सैयदना मैमूना रदी अल्लाह तआला का मज़ार, इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला का मज़ार शरीफ इराक में, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार है। असाबे कहफ का गार, मस्जिद आयशा, सुभान अल्लाह क्या मुबारक मकाम है ये। सैयदना अजीज महमूद हुदाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये इस्तांबुल में इनका मज़ार है। मस्जिद गमामा मदीना मुनव्वरा, हज़रत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, क्या अजीम हस्ती हैं। शाह सूफी अमानत अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह,
پیر صوفی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساؤتھ افریقہ. جناب بہت زیادہ زیارتیں دکھائی گئی ہیں اور یقیناً یہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی تو طریقہ کرنا ہوگا نا, کہ کوئی تو آگے جائے, ساری برابر برابر جا رہے ہیں. اب دیکھیں کس کو کون سی زیارت یاد رہتی ہے. بتائیے فیصل بھائی نے کون سی زیارت بتانی ہے؟ جی غور سے دیکھیں. مجھے تو یاد آ گئی ہے. آپ کے پاس 17 سیکنڈ ہے. صاف اور شفاف دیکھے ہم شفا کے راستے, صاف اور جی فیصل بھائی 5 سیکنڈ ہے, کچھ تو کہہ دیں. صوفی نہیں جناب, یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے. بتائیے میرا جواب بھی درست ہے کہ نہیں ہے؟ جناب جواب درست ہے, نمبر نہیں ملیں گے. آئیے دیکھتے ہیں زیارت کو قریب جا کے. ماشاءاللہ بڑی عظیم ہستی ہیں, سبحان اللہ. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا, اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا, اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا, تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دہلی میں یہ مزار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کا. آئیے ہمارے طلحہ اشرفی سے پوچھتے, بتائیے یہ کون سی زیارت ہے؟ بڑا مقدس مقام ہے جناب یہ. جی 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 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین مکہ مکرمہ میں نواریہ کے مقام پر یہ مزار موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. آئیے اب اس کی زیارت بھی کر لیتے ہیں. جی ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار شریف پر حاضری کے لیے امیر سنت کے ساتھ یہ سفر ہمارا جاری ہے الحمدللہ. بابا یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ یہ سڑک مدینے, سبحان اللہ سبحان اللہ, سوئے مدینہ. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ, ہیں مقامات مقدسہ. اللہ کریم یہ دن پھر دیکھنا نصیب فرمائے, ان مقدس جگہوں پہ جانا پھر, اور سبحان اللہ مرشد کریم کے ساتھ نصیب فرمائے. جناب چلتے ہیں فہیم بھائی کی طرف. بتائیے انہیں کون سی زیارت پہچاننی ہے؟ یہ تو واقعی مشکل ہے. فہیم بھائی نے یاد کیا ہو. 10 سیکنڈ باقی ہیں. بھائی کچھ تو کہہ دیں. جناب وقت ختم ہو گیا ہے. بتائیے یہ زیارت کون سی تھی؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے. آئیے ناظرین ان کے مزار کی زیارت بھی آپ کو کراتے ہیں. اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج اس دربار میں حاضر ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے مدنی چینل پر کئی بار سنا.
दुनिया शिकन कर अमीर सुन्नत के नबी गुजारों में सुना, आपकी किताबों में पढ़ा, मुहद्दिसीन मुहद्दिसीन आपको इनके बड़े बड़े उलमा गोया जिनके शागिर्द जिनकी शुरू बरकत पूछने वाले, वो अजीम हस्ती जिनकी सनद जो है वो पाक हिंद में चलती है, वो अजीम हस्ती जिनके जरिए गोया इल्म फिक्र जो है बड़े सलीम पाक हिंद में पहुंचा, कोई और नहीं, शेख अब्दुल मोहम्मद से देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आज उनके मज़ार में हाजिर हैं। चलें जनाब, आखिरी इस्लामी भाई हैं अब्दुल समद भाई को कौन सी ज़ियारत पहचाननी है, बताइए जनाब। मुक़द्दस मुसल्ला। क्या ये मुक़द्दस मुसल्ले हैं? 3 बड़ी मुबारक जा नमाजें हैं। नाजरीन, किसने यहाँ पर नमाजें पढ़ी थी? ये मकाम क्यों इतना मुक़द्दस है? जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। आइए चलते हैं, देखते हैं। वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही मुबारक मकाम, जब हमने पता चला कि ऐसा मकाम भी मौजूद है जहां 3 अजीम हस्तियों ने एक साथ, यूं समझिए कि इस जगह को बरकत अता की और एक साथ अल्लाह की इबादत फरमाई। सुभान अल्लाह। ये 3 मुसल्ले आप देख रहे होंगे। पहली जा नमाज जो है हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा खाजगान सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह यहाँ इबादत किया करते, जो बताया जाता है। इस ज़ियारत से मुताल्लिक मुकम्मल प्रोग्राम देखने के लिए मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल हबीब अत्तारी विजिट कीजिए। जी, दुनिया में बड़े मुकद्दस मकामात हैं। अल्लाह पाक हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। जनाब, मुकाबले में थोड़ी सी तब्दीली आई है। स्कोर बोर्ड बताएगा कि अब हमारा स्कोर हमें क्या बता रहा है। जी, 2 इस्लामी भाइयों ने सही जवाब दिए हैं, 2 से मिस्टेक हुई है, तो तलहा भाई और अब्दुल समद भाई आगे हैं, मगर बकिया 2 के पास भी मौका है, क्योंकि अगला सेगमेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें सभी के पास चांस होगा आगे बढ़ने का, क्योंकि उसका नाम है दुरुस्त कीजिए। आइए शुरू करते हैं, दुरुस्त कीजिए। पहले फैसल भाई आप बेल बजाएंगे। याद रहे कि ये सवाल आपको वर्ड दिखाया जाएगा जिसमें अल्फाज आगे पीछे होंगे, और आप में से जिसको जवाब आता है वो बेल बजाएंगे, और नहीं आता तो ना बजाइएगा, क्योंकि गलत जवाब की सूरत में 2 नंबर माइनस होंगे। अब आप बेल बजाएंगे। जी, ये अभी हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आपको जवाब आए तो बजाइएगा, वरना उस वक्त ना बजाइएगा। पहले फ़हीम भाई, ठीक है। तो जनाब ये मुकाबला शुरू करते हैं। एक बार आप भी बेल बजा दें। ठीक, तो आप चारों ने जब जवाब अब दुरुस्त होगा तो बेल बजाएंगे। जिसने पहले बजाई उसी की बेल बजेगी, उसी की लाइट जलेगी। बाकी का क्योंकि जो कंप्यूटर है वो खुद ही फैसला कर लेगा किसने सबसे पहले बजाई है। दिखाइए जनाब कौन सा वर्ड है जो ठीक करना है। अल्लाह, अशरफी साहब ने फौरन बेल बजा दी। अब कैसे सही करेंगे बताइए। सानियतुल अलविदा। सनियतुल वदा। क्या ये लफ्ज सनियतुल वदा है? ये लफ्ज तो पूछा जा चुका था पिछले सीजन में। अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह तआला अन्हु। मिस्टेक हो गई है और गलती की सूरत में 2 नंबर माइनस होंगे। प्लीज पहले गौर से वर्ड देखें, चेक करें जो आपके दिमाग में आ रहा है सारे अल्फाज उसमें हैं कि नहीं, फिर बेल बजाएं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लाह, अब बेल बजाइए अब्दुल समद भाई ने। क्या ये भी गलती करके अशरफी भाई के बराबर में आएंगे? दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु। दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या ये दुरुस्त बता रहे हैं? दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब्दुल समद भाई आगे हैं और बाकी इस्लामी भाइयों के पास भी चांस है, क्योंकि अभी 2 सवाल और हैं। तीसरा बताइए जनाब। अब बेल बजाई है फहीम भाई ने, पीछे वो भी नहीं रहना चाहते। सनियतुल विदा। क्या ये सनियतुल वदा है? साबित बुरानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। जनाब ये दोनों ने सनियतुल वदा से मिलते हुए अल्फाज में गलती की है। आखिरी वर्ड है जो फैसला कर देगा कि आज कौन आगे जा रहे हैं। बताइए। फिर बेल बजाइए अशरफी भाई ने। वर्ड दोबारा नहीं दिखाया जाएगा। चले दिखा भी दिया उन्होंने, चले फिर हटा दिया है। वो बेल बजाते वक्त आपको सोचना था। आप कुछ तो बता दें। बेहतर कौन? अच्छा, क्या ये किताब का नाम बेहतर कौन है?
بالکل صحیح جواب دے دیا ہے, آخری سوال میں جواب صحیح دیا ہے, مگر اب اسکور بورڈ کی طرف چلنا ہوگا کہ مقابلہ کس سمت گیا ہے. کیا عبدالصمد بھائی آگے بڑھ گئے ہیں یا مقابلہ کہیں جا کے ٹائی ہوا ہے؟ بڑا شاندار مقابلہ ہوا ناظرین, اور ہم ان چاروں اسلامی بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے. فیصل بھائی کیا کہیں گے, کیسا لگا آپ کو؟ تیاری میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جی الحمدللہ عبدالحبیب بھائی, تیاری میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا, علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع ملا, اور گھر والوں نے اور ہمارے تیاری کروائی, حمزہ بھائی انہوں نے بھی بہت اچھی تیاری کروائی. اچھا بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. فہیم بھائی آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ کہ فرسٹ ٹائم میرا خیال اس طرح آپ کسی پروگرام میں آئے, تو تیاری کیسے کی اس کی؟ بالکل تیاری گھر والوں کے ساتھ مل کے کی. اچھا, گھر میں بھی ذہنی آزمائش گویا ہوتا رہا ماشاءاللہ. شفیق بھائی آپ شروع میں نے دیکھا تھا جب آپ آئے تھے تو بہت کنفیوز تھے, اور میں دیکھ رہا تھا آپ کی آواز بھی بڑی مشکل سے نکل رہی تھی, تو میں نے سوچا یہ سوال آخر میں کروں گا ورنہ شاید جواب نہیں دے پائیں گے. اب کیسی فیلنگ ہے؟ اب آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. بہتر ہوتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں جدہ میں, اچھا, انہوں نے میری تیاری کرائی واٹس ایپ پہ. جدہ سے واٹس ایپ پہ تیاری ہوئی ہے؟ ارے واہ. اور میرے چوتھے نمبر والی بہن, انہوں نے بہت سپورٹ کیا یہ ورڈز. ارے ورڈز میں بھی سپورٹ کیا, اور ماشاءاللہ اس کا مطلب انٹرنیشنلی تیاری ہوئی ہے. پاکستان میں بیٹھ کے جدہ میں امیدیں دیکھ بھی رہے ہوں گے سلسلہ. عبدالصمد بھائی آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھی فیلنگز ہیں, بہت علم دین سیکھنے کو موقع. اب انشاءاللہ ارادہ ہے اور آگے علم دین سیکھیں. چاروں سے گزارش چاہیے کہ ایک بار آئے ہیں اب آتے رہیے, مرکز آپ کا, چینل آپ کا, اور ساتھ ساتھ علم دین بھی سیکھیں. آن لائن مدرسوں میں بھی داخلہ لیا جا سکتا ہے. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں اب کیا بتا رہا ہے. جناب 20 نمبر کے ساتھ عبدالصمد بھائی آج آگے بڑھ گئے, اور طلحہ اشرفی اور فیصل بھائی برابر رہے, اور تھوڑا سا نمبر سے پیچھے رہے فہیم بھائی, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. چاروں اسلامی بھائیوں کا شکریہ ادا کریں گے کیونکہ بات ہے اس میں کچھ خاص. پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل, اور سیگمنٹ ہے بات ہے کچھ خاص. یہ پین ہے, ایک سمپل سی چیز, نہ اس کی بیٹری ہے, نہ چارجنگ ہوتی ہے, نہ اس میں سیل ڈلتے ہیں, نہ کوئی کی بورڈ ہے, نہ مدر بورڈ ہے, نہ انٹرنیٹ اس میں چلتا ہے, نہ ہی یہ سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہے, اور اگر یہ تھوڑی اونچائی سے گر جائے تو ٹوٹتا بھی نہیں, جس طرح موبائل جلدی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن تاریخ انسانی میں پین نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سب سے بڑھ کر اس پین نے قرآن مجید سے برکتیں حاصل کی. جب تک پرنٹنگ پریس ایجاد نہیں ہوئی تھی, تفاسیر قرآن یہ قلم سے ہی لکھی جاتی تھیں, اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی بڑی سائنسی ایجادات کے فارمولے اور بڑی بڑی جنگوں کے معاہدے وہ اسی پین کی نوک سے ضبط تحریر میں لائے گئے. تو یہ پین انسانیت کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اٹس اے ویری بگ ایسٹ فار دا انٹائر ہیومینٹی. پھر 1874 میں ٹائپ رائٹر ایجاد ہوا, لیکن پین کی شہرت میں کمی نہیں آئی کیونکہ ٹائپ رائٹر تک سب کی رسائی نہیں تھی. اور پھر لیٹ 1970s میں کمپیوٹر کا کی بورڈ آ گیا, اور اس کے آنے کے بعد پین سے لکھائی میں کمی آئی. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا چلا گیا, اور اب تو بہت سے ایسے ایجوکیشن سسٹمز ہیں بہت سے ملکوں میں, اگر بچوں کو پین سے لکھنا نہیں آتا, وہ صرف کمپیوٹر سے لکھنا جانتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو پین سے لکھنا آئے. بچہ جب پین کو پکڑتا ہے, سوچتا ہے کس طرح حرف کو لکھنا ہے, اور پھر یہ آہستہ نہیں آتا, یہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو آنے میں, تربیت ہوتی ہے. جبکہ کمپیوٹر میں صرف ایک بٹن دبائیں اور سامنے وہ الفابیٹ لکھا آ جاتا ہے. باقاعدہ جب بچے ہینڈ رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں, ان بچوں کی دماغ کی MRI کی گئی, اسکین کیا گیا, ٹیسٹ کیا گیا, تو پتہ چلا کہ جو بچے ہاتھ سے لکھتے ہیں ان کو سبق زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے. اور ایک حیران کن بات, جس طرح انگلیوں کے نشان مختلف ہوتے ہیں, چہرے کے نقوش مختلف ہوتے ہیں, اسی طرح سب کی لکھائی بھی ان سے خاص ہے. یعنی سب کی لکھائی بھی ایک طرح سے مختلف ہوتی ہے, اور کسی کے دستخط وہ تو اس کا ایک پرسنل آئٹم ہے جو کہ یوز ہو سکتی ہے, اور اس کی لکھائی سے اس کی شخصیت کی پہچان بھی ہوتی ہے. ایجوکیشن کی الگ سے برانچ ہے جس کو پیلیوگرافی کہا جاتا ہے, جس میں ہاتھ سے لکھنے کو ڈیل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور قلم کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آیا. اللہ عز و جل خوب ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں تلاوت کلام مجید کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع
पाए उलमा, इल्म का मुझको शौक अता कर खुदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।